IVM. Hi everybody, just wanted to ask everyone for a quick favor. We're running a brand survey right now and would really appreciate it if you could let us know what you think about the advertising on IVM. Go to ivmpodcast.com/survey and do let us know. As part of this, we'll be selecting 10 random participants and sending them some IVM swag, so do fill out those surveys. ओए पूरी साहब, आज खुश तो बहुत हो गए तुम भाई। क्यों भाई? क्योंकि आज हम आपकी जिंदगी की दास्तान का जिक्र करने वाले हैं। ये टाइटल नहीं पढ़ा ना लोगों ने आज, लगता है। क्या टाइटल नहीं पढ़ा? आज लोगों ने टाइटल नहीं पढ़ा होगा क्या एपिसोड का? क्या मतलब है टाइटल नहीं पढ़ा होगा? हमने तो इंग्लिश में क्यों लिखा है? पता है आपको, I have been the recipient of every पूरी joke that there is. बचपन से मुझे आलू पूरी, छोले पूरी, चना पूरी सब कुछ लोग बुला चुके हैं। शायद वो सुन के मैंने इंटरनलाइज कर लिया कि मुझे आलू पूरी ही खानी पड़ेगी, तो मैंने वो ज्यादा खा ली और थोड़ा मोटा हो गया। अगर आपके पास कोई नया पूरी जोक है तो प्लीज राइट टू अस ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम। नया पूरी जोक कहाँ से? नया फ्रेश पूरी छान के लाएंगे और जोक बना देंगे उसका। ऐसा नहीं, प्लीज एक्चुअल जोक। हाँ प्लीज। लेकिन ठीक है, ओके फाइन। तुम तो खानदानी पूरी बेचने वाले हो। हम उस पे नहीं आएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सर्व पूरी सर्व कर रहे पूरी। ठीक है, हम ऐसे पूरी जा नहीं रहे घूमने फिरने, बड़े घूमी हो गया। क्योंकि अब पूरी का डिस्कशन के पीछे भी रीजन है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आलू को सर्व किया था, तो भाई लाजमी है कि आलू और पूरी का मेल हो पाए, और इनका मेल होगा तो इश्क बढ़ेगा, और इश्क बढ़ेगा तो जोड़ी इनकी जो है मुकम्मल रहेगी। तो आज जश्न पूरी होगा लगता है हमारे पॉडकास्ट पे। आज जश्न पूरी होगा, और हम इस रिवाज को आगे बढ़ाएंगे। तो इन today's episode we will talk about why puris are good for traveling and the Kanjak festival. And why puri is a festive food, also a regular Sunday breakfast in Delhi, UP, and a couple of other North Indian states, and a famous Nagori halwa and bedmi puri as well. Also आपको ये भी बताएंगे कि पूरीज को थोड़े हेल्दी तरीके से कैसे बनाना है, कौन सा टाइप का ऑयल यूज करना चाहिए फ्राई करने के लिए पूरी को। हाँ, और एज यूजुअल अब आपने बता दिया क्या क्या बात होगी, तो भाई साहब पॉडकास्ट के रिवाज के मुताबिक अपनी अपनी वाली कहानी तो हम सुनाएंगे ही। तो अचित, बिकॉज आप तो मतलब खानदानी पेशेवर पूरी वाले हैं, तो भगवान आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा किससे बताएं हमें आपकी पूरी कहानी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल द पूरी जोक्स। उसके अलावा कुछ माल मसाला है तो बताइए। बिल्कुल, तो हर हफ्ते तो पूरी घर पे बनती ही थी, टिपिकली विद आलू, समटाइम्स विद कद्दू की सब्जी, and sometimes with chana as well. But interestingly, I have distinct memories of puris being made at home in bulk during the Kanjak festival. Now, this is a festival that is usually celebrated on the 8th or 9th day of Navratre. These are known as either Ashtami or Navami. Several Hindu households conduct Kanjak or Kanya Puja, as it's also known, where 9 girls who have not yet attained puberty are welcomed into the house by first washing their feet, tying moli around their wrist, which is like a red thread. And these 9 girls are then seated and offered variety of delicacies, including suji halwa, puri, and kala chana, sukha kala chana specifically. Nowadays, one can also see boys accompanying the girls in the Kanjak, so it's become a gender agnostic ritual. And iska jo significance hai is that these young girls who haven't hit puberty are worshipped as the embodiment of the 9 divine forms of Durga. The ritual goes back centuries in time. According to our scriptures, when the earth was distressed by the demon Kalasura, it was goddess Durga who, in her incarnation of a young girl, defeated the demon. Unable to battle this mighty demon, the gods in the heaven approached goddess Durga to seek her help. She assumed a form of a young girl or a Kumari and stood in front of Kalasura, and blinded by the overwhelming power, the demon thought, how could a little girl sort of defeat this invincible ruler such as him? And he got relaxed, he let his guard down कि हाँ मुझे कैसे मार सकती है ये.
And the little goddess, pulled out her sword and killed him and saved the earth from this despotic demon. So that's the significance of Kanjak or Kanya Puja. And this was still celebrated in my house, of course. दूसरी मेमोरी थी ट्रेन जर्नीज की या कार जर्नीज की, जिसपे टिपिकली मम्मी पूड़ीज को सूखे आलू सब्जी में रोल करके देती थी. एंड यू विल टॉक अबाउट लेटर व्हाई पूड़ीज आर गुड फॉर ट्रैवलिंग. सो या दोस आर माय टू मेन मेमोरीज. आप बताइए आपकी क्या है? अरे वाह 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 वाह. और अभी कंजक पूछा, अभी भी गई भी है. करेक्ट. बचपन में ना मुझे बड़ा बुरा लगता था, पता है, हमारे पड़ोस में बिल्कुल कन्याएं को ढूंढ ढूंढ के बुलाया जाता खाना खिलाने के लिए. हम लगा मुझे भी बुला लो यार, मैं भी खाऊंगा, मैं तो पैसे भी नहीं लूंगा, बस खाने बुला लो तुम मुझे. या तो बिफोर आई शेयर माई पूरी स्टोरी, थोड़ा डिटोर लेना चाहता हूँ पानी पूरी के पास. तो एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ है, और ये भी ना मुझे बहुत रिसेंटली मालूम चला है. ऑन द इन्वेंशन ऑफ पानी पूरी, ठीक है, कि पानी पूरी जो है, पानी पूरी, पानी बताशा, गोलगप्पा, गुपचुप, वट एवर नेम दैट यू फैंसी. अब जिक्र ये है, इफ यू लुक एट राइट नाउ, यू कैन पॉज दिस पॉडकास्ट एंड लुक इट अप ऑनलाइन, हिस्ट्री और द ओरिजिन ऑफ पानी पूरी, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गारंटीड, विच इज कि पानी पूरी जो है वो बना ड्यूरिंग महाभारत टाइम. तो हुआ यूं कि एक जो हमारी मोहतरमा है, दो लेडीज ऑफ द इन द हाउस, द मैट्रियार्क द्रौपदी. तो द्रौपदी की जब शादी वादी हो गई थी इन 5 पांडवों से, तो द्रौपदी घर पहुंची और घर पे आराम से चल रहा सिलसिला. वन फाइन डे द्रौपदी की सासू माँ कुंती, तो कुंती ने ना द्रौपदी को दिया एक टास्क, बोला देखो हमारे बच्चे बड़े भूखे मर रहे, तो इनको खाने को चाहिए. तो वहां पर दिया गया गोलगप्पा का इन्वेंशन आइडिया आया, बिकॉज द्रौपदी को ना ऐसे थोड़े से आलू मिले थे, थोड़े से आटा या मैदा जो भी था वो मिला था, तेल वेल था थोड़े थोड़े. तो द्रौपदी केम विद द आइडिया ऑफ मेकिंग पानीपुरी. ओके, सो ये स्टोरी है. स्टोरी ऑल्सो गोज स्टेप 2 इज की द रीजन वाई मोस्ट ऑफ्टन देन नॉट एक प्लेट में 5 पूरियां होती हैं. ठीक है, इफ यू हैव एवर रियलाइज, एक प्लेट में 5 पूरियां इसलिए होती हैं क्योंकि 5 पांडव, तो 5 पांडव से 5 पूरी, सिंपल, टाड़ा. ये थोड़ी मेड अप लग रही है ये लास्ट पार्ट. नहीं तो सुनो, तो नहीं इसीलिए that's the whole reason why. Yeah. तो irrespective, अगर बचपन में तुमने 5 रुपए की 5 पानी पूरी खाई है, या फिर अब बड़े होके तुमने 20 की 5 खाई है, तो 5 मिलते हैं. So now that's the story. Yeah. Okay. Now the big reveal. It's all fake. It's all made up. कहानी झूठी है, गलत है. 2013 की बात है. कोई भाई साहब है अभिनव बोल के, अभिनव या अभिषेक करके कोई नाम मैं भूल रहा हूँ. Somebody asked a question on Quora, और Quora पे ये भाई साहब ने मजे लेने के लिए एवं ये कहानी जो है लिख दी, और 2013 के बाद से हिस्ट्री बन गई ये कि पानी पूरी की जो कहानी है वो ये है. काफी ज्यादा ऑफ कोर्स लूप होल्स है also because आलू wasn't there during महाभारत टाइम. Yeah. Okay. आलू छोड़ो, पूरी कहानी महाभारत टाइम नहीं थी, बट दिस गाय all the respect for him and all the and also many people including me, I have also fallen for this particular story because 2013 में आया था ना, तो अब 13 से लेके अब तक में तो हिस्ट्री चेंज हो गई. However, पुष्पेश पंत does say कि ये जो है मतलब महाभारत की नहीं है, करीब पुराने जमाने की है. किस तरीके से इन्वेंशन हुआ nobody knows, but हाँ कुछ तो हुआ है. Never let facts get in the way of a good story, as they say. Yeah. But you know, आज ये वाली पूरी आउट ऑफ सिलेबस है. आज हम लुच्ची वाली पूरी की अनुवाद करेंगे जो टिपिकली सब्जी के साथ खाई जाती है, नॉट द चाट वाली पानी पूरी या सेव पूरी. उसके लिए आप हमारा चाट वाला एपिसोड सुनिए, which we've recorded I think earlier this year, so go check that out if you are expecting chart content, then that's for you. Anyway, सिलेबस का आउट हो गया. वापस आते हैं आपकी पूरी वाली स्टोरी पर. मेरी पूरी स्टोरी, तो मेरी पूरी स्टोरी देखो यही है, सिंपल सी बात है कि सबने खाई है पूरी, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है which I can highlight अलग से. But you have mentioned about Sundays and I will come to that as well. And second is कि ट्रेन की जर्नी भी बाद में आते हैं. I think growing up जिन्होंने फ्लाइट उतनी नहीं ली है, और मतलब ग्रोइंग अप, अब आपको अगर आप फ्लाइट लेते हो अलग बात है, बट अगर पहले 90s वगैरह में जब ट्रेन और बस की जर्नी ज़्यादा हुआ करती थी, तो आपने, आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम वेरी श्योर, वेरी सर्टन अबाउट इट, कि आपने पूरियाँ या पराठे ही पैक करेंगे. पराठे नॉट सो मच, बट पूरियाँ ही पैक करके आपका जर्नी में, पिकनिक में तो पूरियाँ ही होंगी.
तो या मेरे घर पे होता था, तो मेरे घर पे ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। तो मदर एंड फादर बोथ इन माय हाउस यूज्ड टू कुक टुगेदर। तो मदर छान रही हैं और फादर टुपुर टुपुर पूड़ी बेल रहे हैं। एक है मस्त पूड़ी बेला रहा है, एक साइड से मस्त छना रहा है, और मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं। अब बड़े होके मैं ऐसे वीडियो लेकर एक मिनट अच्छे से नाइस फुली सी होनी चाहिए, तो फुली वाली का मैं ऐसे वीडियो बनाता। और बचपन में तो ये सब नहीं करता, बचपन में बैठ के बस नगाड़े पीटता था, भाई भूख लग गई खाने को दे दो। ये कहानी मेरी है, और कुछ स्पेशल नहीं है मेरी पूरी कहानी के पीछे। I have a technical question for you. तो जब अगर आपको 20 लोगों के लिए खाना बनाना हो, so is it quicker to make puris than to make rotis for people? Yes, I would agree on that because see, it's frying. तो अगर तेल गरम है मस्त टाइप का, तो उसके अंदर डालो, छोड़ो, निकल गया। And also most often now people do like puri. Yeah. अच्छा, you know Archit, I think कि पूरी should be official bread of India only on weekends. बाकी तब ठीक है, weekends पे ना official तो हो ही जानी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, and you also mentioned and I also mentioned the same thing कि many houses have a रिवाज, रिचुअल चला आ रहा है कि संडे हुआ मतलब आलू भाजी अचार एंड जलेबी। ओके, एंड आई कॉल देम द बिग फोर्स ऑफ हिंदुस्तानी फूड, जिसमें कि ये चार होने ही होने हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। पूरी आपके प्लेट पे रहेगी, और पूरी है तो जिंदगी पूरी है, वरना सब अधूरी है। ये दिस इज व्हाई आई थिंक पूरी ईस्ट और वेस्ट, पूरी इज द बेस्ट। यो Yeah, how many things have you said this for? ये तो बस इसके लिए। ये तो इसके लिए ऑफिशियल ब्रेड है भाई। हाँ, अब क्या कर रहे हो, इट्स योर वर्ड वर्सेस माइन। तो अनुभूति कृष्ण करके एक है, हमारी दोस्त भी है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, शो नोट्स में है, लिंक पे क्लिक करें, बात सुने हमारी, उनका आर्टिकल साथ पढ़ ले। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कि शी हैज इंटरव्यूड शेफ रणवीर बरार, और बरार साहब बताते हैं कि लखनऊ में, अब बरार साहब बड़े हुए लखनऊ में ही, तो अब बॉम्बे में थे, लेकिन जब लखनऊ में बड़े हो रहे थे तो ही सेड कि देयर वाज अ मैन इन लखनऊ हु वाज ओनली सेलिंग चना पूरी। ठीक है, एंड स्टोरी गोज दैट एक बार क्या हुआ कि इनकम टैक्स का रेड पड़ गया उसके ऊपर। क्यों? जस्ट बेसिस ऑन द पत्तल या फिर डोना। उसके दुकान पे इतने डोने पड़े होते थे कि और उसके डस्टबिन में बेसिकली, ऑफ कोर्स नॉट बाहर, डस्टबिन में पड़े थे कि दे टैक्स्ड हिम फॉर 15 इयर्स, 15 साल स्ट्रेट अप उसको टैक्स किया गया। दैट इज इमेजिनिंग हाउ मेनी पूरीज दिस पर्सन वाज सेलिंग इन लखनऊ। सो ये बड़ा साहब की कहानी है, एंड ही आल्सो सेज दैट दीस आर द स्टोरीज कीप द फूड अलाइव, राइट? एंड इस तरीके के ही किस्से जो है मजेदार होते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। लाइक व्हाट आई मेंशन पानी पूरी, एंड यू सेड कि फैक्ट का क्या करना है, कहानी है तो कहानी सुन लो। हाँ. तो आई थिंक बरार साहब की खास बात ये है कि कहानियां सुन लो, फैक्ट वैक्ट मत चेक करो उसके अंदर, कहानी सुनो मजे से। सो या, तो ये एक है किस्सा। और अब पूरी और कचौरी भी, इनफैक्ट इफ आई क्लब दैट, बिकॉज इवन इफ देयर इज नॉट वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन पूरी एंड कचौरी, दोनों का प्रोसेस सेम है। ऑफ कोर्स एक स्टफ्ड होता है और एक नहीं होता है, एक ज्यादा खस्ता होता है, एक ज्यादा खस्ता नहीं होता है। एक एक्चुअली डिफरेंस इज, एक होता है खस्ता और एक होता है करारा। करारा मतलब क्रिस्पी, जो कि ऊपर टॉप होता है। खस्ता इज खस्ता, लाइक मस्त खाया, क्रंची कुंची हुआ है। तो ये अलग अलग क्रिस्पी एंड क्रंची का फर्क है। तो कचौरी खस्ती होती है, और पूरियां जो है खस्ती नहीं, थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। खस्ता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रंची। क्रंची नहीं, क्रिस्पी, कैसे कुछ बोलेंगे मेरे ख्याल से। पर क्रिस्पी तो फिर पूड़ीज हैं। हाँ, पूड़ी क्रिस्पी है, तो कचौड़ी क्रंची हो गई, है ना? मैंने खस्ता सर्च किया तो इट सेज क्रिस्पी। ओह, तो दूसरा क्या होगा? क्रंची का हिंदी क्या होगा फिर, देखो तो। क्रंची इन हिंदी, क्रंची कुरकुरा। कुरकुरा, उसमें मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। अगर आपको पता है खस्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं या डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो प्लीज राइट टू अस। हाँ, प्लीज डिस्क्राइब। सॉरी, डिस्क्राइब। लाइक वी नो व्हाट खस्ता मींस, वी जस्ट डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट इन इंग्लिश। सो हाँ, वो तो अल्फाज नहीं यार, थोड़ा सा मिस्टेक, गलती से मिस्टेक ना हो जाए हमसे। तो अब एक, दोनों ही जो है पूरी और कचौरी, दोनों ही फेस्टिव फूड भी माना जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल फूड। फेस्टिव फूड क्यों? क्योंकि अर्चित, यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट द कंजक, तो एक सिग्निफिकेंस वहां चला जाता है। और कचौरियां तो ऑफ कोर्स है, होली पे कचौरी होती है। ईद के टाइम पर, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट पुरानी दिल्ली ओनली, अगर ईद है,
पुरानी दिल्ली में देयर इज जस्ट वन गाय हु कम्स ड्यूरिंग ईद, और ईद के टाइम पे, ईद मतलब ईद के दिन नहीं, हफ्ते भर पहले से उसको ऑर्डर दे दो आप, तो वो कचौड़ी बनाते हैं। और ये पुरानी दिल्ली में एक जो ट्रेडिशन चला आया है, रिवाज चला आया है कि पीपल देयर विल हैव कचौड़ी विथ आलू ईद के दिन पर, विच इज वेरी कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल थिंक कि यार है आप तो मीट मांस ही खाते होंगे सर, ईद है ये क्या कर रहे हैं, मतलब करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट कचौरी पूरी आलू जो है ये बड़ा ही पुरानी दिल्ली का ट्रेडिशन चला है। I'm stunned. I'm stunned. Absolutely stunned. सरप्राइज। खैर, तो अब अगर रिचुअल देखा जाए, रिचुअलिस्टिक जो है वैदिक, अगर हम बात करें वैदिक किचन की बात करें, आई थिंक वी हैव मेंशन्ड दिस सम टाइम इन वन ऑफ आवर एपिसोड्स अबाउट पक्का खाना एंड कच्चा खाना, right? The major concept of differences between these two thing. तो घी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है most often than not to give it to भगवान, not अर्चित पुरी। अर्चित पुरी को भी घी पसंद है। अभी मालूम चला है दोस्तों, इनके घर पे इनकम टैक्स का रेट होना चाहिए 1500 रुपए केजी घी खाता है आदमी। हम लोग गरीब लोग हैं, 600 रुपया में हमारा काम हो जाता है, 1500 रुपए में कौन खाता है घी? इमेजिन करो। उफ, ये अभी याद है तुम्हारे एनसीबी तुम्हारे घर आएंगे भी। Are you snorting ही अर्चित? जवाब दीजिए अर्चित जवाब दीजिए, अर्चित साहब जवाब दीजिए। आप कह सकते हैं उसका एक नशा है। Are you having a blast? If you get this joke, you are very well aware of the news. If you don't, then वापस जाके न्यूज सुन के आइए एक बारी। मत सुनिए फालतू और मत सुनिए, हाँ वो भी है, मत सुनो, हम लोग का बात सुन लो यार। थोड़ा सा हमारे साथ भी थोड़ा वक्त गुजारिए। खैर, बैक टू कच्चा खाना पक्का खाना। तो चीजों को जिसको हम बिल्कुल अच्छे से कुक करते हैं घी में, वो बन जाता है पक्का या फिर सच्चा खाना, मतलब प्योर, झूठा नहीं, सच्चा। सो देयर इज झूठा इन द सच्चा कंसेप्ट, राइट? इवन दो मोस्ट ऑफ अस, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट कंसेप्चुअली वैदिक टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं पक्का और कच्चा खाना, सच्चा खाना के बीच में। नाउ कच्चा खाना जो होता है ऑन दी अदर हैंड, वो घी में डिप नहीं होता है। इट कुड बी रॉ फूड और पार्शियली रॉ फूड, राइट? तो ये हो गया डिफरेंस। तो पूरी उस हिसाब से जो है आती है पक्का खाना के अंदर, राइट? बिकॉज यू आर डीप फ्राइंग इट। तो एक तो हो गया पक्का खाना, और दूसरा कि पूरी जो है उसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, राइट? आप उसको बल्क बना सकते हो और लंबे लंबे डिस्टेंस तक के लिए आप ले जा सकते हो। ट्रेन रखो, फ्लाइट रखो, बस रखो, पैदल निकलो, इजीली जो है उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। इसलिए भी क्योंकि चीजें कब खराब होने लगती हैं, अगर आप साइंस पढ़ो या फिर अगर आप साइंस छोड़ो यार, बेसिक दिमाग भी लगा लो, चीजें खराब होती है जब उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, राइट? और मॉइस्चर होता है वाटर से। अगर वाटर कंटेंट ही आप किसी चीज का खत्म कर दोगे, तो वाटर एंड एयर दोनों खत्म कर दिया अंदर का, तो बस इट विल लाइक लंबी टाइम तक वो चलेगा इजीली। एंड दैट्स द रीजन व्हाई many of the banyas, many of Rajasthan area has really nice delicious कचौरियाँ। क्यों? क्योंकि लंबा चलना है और मौसम भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है, लेकिन it just adds on, right? एंड इसलिए शेल्फ लाइफ जो लंबी होती है, इसीलिए अक्सर हम आज भी ट्रैवल के टाइम पर लेके जाते हैं पूरी, और पूरी के साथ ऑफ कोर्स आलू। क्यों? क्योंकि आलू में भी यूजुअली ट्रैवल में ना ऐसे यू वांट लाइक अ सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, फिंगर फूड, राइट? तो यू वांट इट एज अ फिंगर फूड। तो सूखी सब्जी हो गई, आलू की सब्जी मोस्टली हो जाती है क्योंकि वो भी लंबा चलता है, एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी लव्स आलू, एंड कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन सो फार। खैर, तो ये है, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट पूरी एंड पक्का खाना। पुरानी दिल्ली में काफी अलग अलग किस्म की चीजें भी मिलती हैं पूरियों के नाम पर। ऑफ कोर्स राजस्थान की प्याज की कचौड़ी है, मावा कचौड़ी है। अच्छा, आई एम गोइंग टू बी इंटरचेंजिंग पूरी कचौड़ी, तो इसे बुरा मत मान देना कोई। तो पुरानी दिल्ली में है काफी इंटरेस्टिंग सी पूरियां। अच्छा, अगर पुरानी दिल्ली की बात किया है हमने, तो हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट, समथिंग व्हिच आई लाइक। अर्चित डज नॉट लाइक ब्रेकफास्ट। एक्चुअली नो, यू डू लाइक ब्रेकफास्ट, खाली तुम्हारा ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे होता है। करेक्ट। आई मीन वो आइटम्स जो ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं वो मैं खाता हूँ, बट आई जस्ट डोंट ईट इन द मॉर्निंग। हाँ, करेक्ट। सो यू डू लाइक ब्रेकफास्ट, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैला रहे लोग। किसने तो बताया था मुझे आके। माय फास्ट इज ब्रोकन लेटर। हाँ, ओहो, बहुत बहुत उम्दा, बहुत भारी। अच्छा, तो अगर हम पुरानी दिल्ली की बात करें, ऑफ कोर्स यूपी में भी काफी पॉपुलर है, वहां पे भी आते हैं। तो एक पूरी आलू जो है वो ऐसा माना जाता है
की फेवरेट कॉम्बिनेशन है अक्रॉस रीजन्स इन इंडिया। पोटैटोज जो है अलग अलग तरीके से बनते हैं। अगर आप यूपी जाओ तो रस वाला आलू रहता है, घरों पे यूजुअली लोग ज़ीरा आलू बनाते हैं या फिर पोस्तो आलू बनाते हैं, जो कि बंगाल में फेमस है। पोस्तो आलू विथ लुची, ओहो डिलिशियस। भूख लग गई इसी बात पे, अब तो इस संडे यही बनेगा। तो एक वो कॉम्बिनेशन है, अलग अलग किस्म किस्म का कॉम्बिनेशन है आलू के साथ में यूजुअली। आई थिंक दोनों जो है बहुत सही जाता है। और साउथ में भी पूरी है, पूरी सागू के नाम से। तो ये है। अच्छा, चिकपीस भी है बाय द वे, छोले या फिर काले चने, चिट्टे चने या फिर काले चने, जो कि काफी इस्तेमाल होता है। लाइक व्हाट अगेन अच्युत मेंशन बट कंजक, जो सूखे चने होते हैं उसकी जगह पे गीले रस वाले चने भी उसके अंदर जो है जाते हैं। गुजरात में ऑफकोर्स आम रस और पूरी भी है, तो वो भी जाती है, ब्रेकफास्ट पे खा सकते हैं आप आम रस और पूरी। लेकिन एक चीज ये बात है ना कि कहना कि क्या ये ब्रेकफास्ट फूड है, आई डोंट नो आई डोंट नो। तो काफी सारे ब्रेकफास्ट फूड हो सकते हैं, और द ब्यूटी यही है ना। आई थिंक ये इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या ब्रेकफास्ट फूड है कि नहीं, ब्यूटी यही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जबान हो या खाना हो, चेंज होता है, वो अडेप्ट होता है बेसिस व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ इन द कंट्री। इन्फ्लुएंस कैसा है, तो आलू के ऊपर उस टाइम नाश्ते के ऊपर जब आ रहा था इन्फ्लुएंस उस टाइप का था, तो चेंज हो गया। आगे जाके मे भी चेंज आए, लाइक अभी जो हैबिट है लोगों की चेंज हो रही है, राइट। फ्रॉम द पूरी आलू सिस्टम अब लोग कम पूरी आलू खाते हैं। नाउ पीपल आर टुवर्ड्स म्यूस्ली एंड ऑल। मे बी कल को शायद कुछ और आ जाएगा। I think a reason why puri aloo, something as heavy as puri aloo, is consumed earlier in the day versus later in the day, because it keeps you filled for a longer period of time. रात को अगर आप खाएंगे deep fried puri और आलू तो indigestion हो जाएगी, because body takes time to digest such a heavy, meal. So it's better to eat it earlier in the day than to eat it later in the day. Yeah. I think that's why even nahari for that matter, जो हमने बात की थी, नहारी भी जो है सुबह ही खाते ताकि बॉडी डाइजेस्ट कर सके। लस्सी भी सुबह पीते हैं, रात को सब नहीं खाया था। And according to Ayurveda, your digestive system is at its peak when the sun is at its peak. So around 12 o'clock, 1 o'clock is a good time to eat something very heavy. Yeah. तो तो अब एक पूरी है और दूसरा जो है कचौरी। एक ट्रेडिशनल स्टफिंग अगर देखी जाए कचौरी की, तो वो होती है उड़द दाल, सोक्ड, ग्राउंड जैसे भी जाए। आलू भी होता है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा भर के आलू अलग बन जाता है। वो यूजुअली टेम्परिंग की जाती है इसकी हींग से, जिंजर, चिलीज वगैरह से इसकी होती है, और डो में भर के मस्त गोल बना के हल्की सी पेड़े को ना हल्का सा चपटा करके उसको बिल्कुल फ्राई कर देते हैं। अब इस तरीके से जो है फेमस पुरानी दिल्ली की कचौरियाँ इस टाइप से जो है, एक है नगोरी हलवा पूरी। नगोरी में एक बहुत ही, इट्स अ, I don't know if people have had it or not, but if you haven't, you should, because it's a very weird combination to look at, but when you eat it, it's the best. Essentially होता क्या है ना कि एक पूरी मिलती है आपको, ठीक है, खाली पूरी होती है, उसको आप ऐसे जस्ट लाइक पानी पूरी, उसके अंदर आप छेद करो, आलू की सब्जी रस वाली और चने भी होते हैं मेरे ख्याल से, वो डालते हैं, एंड देन सूजी का हलवा मीठा वो डालते हैं। तो एक फुल, मतलब लाइक अ पाई, if I will say like it becomes like a pie and then you eat it together. तो उसके अंदर क्रंच है, उसके अंदर मीठा है, उसके अंदर तीखा है, उसके अंदर रस है और फैट है, एवरीथिंग इन जस्ट वन बाइट। और मस्त वो फिंगर फूड होता है। तो आई थिंक इफ पीपल हैवंट हैड इट, they totally it's should. Definitely a must try. It's something that cannot be explained, and as you said, seems odd when you think about it, but there's a distinct taste to it that is worth try. Yeah. I remember the first time when I had it, I'm like, क्या है ये? मतलब I was just looking at like, क्यों खा रही है? तो मतलब I could never imagine having a रस वाली सब्जी के साथ में हलवा and all these things together. अलग अलग खाया है, लेकिन this was एक one bite wonder. वाह, it was, I can still, I'm salivating already. खैर, अब आगे चल चल के जो है कचौरी का इसी का शेप भी बदलते गया। लोगों ने जब अंग्रेज आए, कोलोनाइजेशन हो गया ज़्यादा, तो एक्सोटिक इंग्लिश वेजिटेबल्स आ गए। उनमें से एक थे हमारे पास मटर पीस। तो मटर जाने लगे। अब मटर हो, कीमा मटर हो जाए, चाहे ये नॉर्मल हो जाए, अब तो खैर मटर हर चीज़ जाता है। मटर वाले जो हैं कचौड़ियाँ काफ़ी फेमस है पुरानी दिल्ली में, यूपी में भी इनफैक्ट मटर स्टफ्ड जो है, यूपी, राजस्थान और बंगाल, ये 3-4 जगह पे ना काफ़ी जो है पॉपुलर है ये पर्टिकुलर वर्जन। अच्छा, 2-3 स्पेशल मेंशन ऑफ पूरी स्लैश कचौरी। एक तो मैंने पहले बता दिया कि नगोरी कचौड़ी है, पुरानी दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है, जाएं खा के आएँ, अगर नहीं जाएंगे तो प्लीज़ क्या ही बताएं फिर आपको, तो गंगा मैया की सौगंध, चाय खा के आए। दूसरा है कचौड़ी जो आती है आपको बंगाल से, मटर कचौड़ी, एज आई मेंशन, यूजुअली खाते हैं आलू दम के साथ में,
बिहार में बनती है सत्तू कचौड़ी, अगेन सेम प्रोसेस, सेम थिंग, चटनी और चोखा या सब्जी के साथ में उसको खाते हैं. Then of लिलवा. course you have the लिलवा कचौड़ी. I like this name by the way, लिलवा कचौड़ी. लिलवा कचौड़ी बेसिकली ये जो है मटर को बोलते हैं, तो वो आती है विंटर्स में, आती है लिलवा कचौड़ी. फिर ये गुज्जू है, गुजराती लोग जो लिलवा खाते हैं विद घुघरा विच इज चना, स्नैक भी है. और तो एक्चुअली यू नो द इंटरेस्टिंग बात, कचौड़ी जो है स्नैक है, उसका जो भाई या बहन जो भी बोलो, पूरी बहन ले लेते हैं बिकॉज इट एंड्स विद वावल. तो जो उसकी बहन है वो सुबह का है नाश्ता, तो नाश्ता और स्नैक दोनों कवर कर लिया है, मतलब दोनों भाई बहन या बहन बहन भाई भाई जो भी है. तो यू कैन से पूरी इज द पूरा मील एंड कचौरी इज आधी. श्योर, पूरी इज पूरा, कचौरी इज आधा. हाँ स्नैक है ना, तो हाँ ठीक है चलेगा. लॉजिक अच्छा है, ये था बढ़िया गुरु. तो ये है. फिर ऑफ कोर्स यू हैव द बनारस. इफ यू टॉक अबाउट पूरी कचौड़ी, यू कैन नॉट, एब्सोल्युटली कैन नॉट मिस यूपी इन दिस. बनारस में काफी सारे अलग अलग वर्जन है. एक बनती है गोल कचौरी जो कि काफी लजीज होती है, और बेड़मी पूड़ी भी आती है जो कि घरों पे अक्सर बनाते हैं. बेड़मी पूड़ी जो है पूड़ी है, कुछ स्टफिंग नहीं होती है, लेकिन उसका मसाला इस तरीके से होता है दैट मेक्स इट रियली डिलीशियस. मेरे घर पे काफी अक्सर जो है ये वाली पूरी बना करती थी. If you eat it as in your bed as breakfast, तो वो बेड में पूरी हो जाएगी. बेड में पूरी हो जाएगी. खुद के ही नाम पे खुदा ही जोक बाबा है लोग. So yeah, it's a wonderful world of puri and kachori if you want to get into it, because there's so much to explore. Of course, there's entire ऊपर up north कश्मीर जम्मू बचा हुआ है, साउथ का पूरियां है, बेसिक प्लेन पूरियां तो खैर इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई थिंक सिंपल खाने में जो मजा है वो तो खैर सिंपल खाने में ही है. सिंपल सिंपल टिम टिम टिम, सिंपल डिंपल. खैर आप एक ब्रेक ले लीजिए अभी और फिर पूरी कहानी वापस आके सुनेंगे. ब्रेक. The world is doing some amazing things with AI when it comes to food and the food industry. AI has been deployed to help with precise analytics, sorting fresh produce, managing supply chains, and so much more. However, it can seem quite daunting if you don't exactly understand how AI works. Luckily, Intel's Digital Readiness Program is here to empower everyone with skill sets, mindsets, tool sets to use in an AI-fueled world, so you can be ready to develop AI for even sports if you want to. As part of Intel's AI for Youth program, Intel has been working with CBSE, Ministry of Education, and the Government of India to empower today's youth to build social impact solutions while demystifying what AI is. How do you take advantage of this? Purchase an Intel Core powered PC and you get free access to 80 plus hours of immersive and hands-on training about AI. On completion of the program, along with the certificate, you get access to AI toolsets to try put what you learned to good use. So don't wait. Log on to futurebanowwonderful.intel.com. Future Banao Wonderful by bringing home an Intel powered PC. Okay, पूरी साहब, तो हमने तो बाकी तो पूरियों के बारे में बात कर ली, स्पेशल मेंशन भी दे दिया है, बट आपका तो कारोबार ही पूरी का है. Would you know कि anything else that can be used as well instead of just आटा या मैदा जो हम regularly या फिर most often than not use करते हैं? So we can make puris with millet flours like ragi and bajra, and you know, in our roti episode we've described how to use these millets as alternatives to wheat. But another type of puri, another type of flour that we can use to make puri is kuttu or buckwheat, which is actually not a flour, or which is not a grain, rather it is a pseudo grain. It is actually a seed. And all pseudo grains and flours such as buckwheat or water chestnut flour. Now, water chestnut flour is singhade ka flour, jisse bhi puriyan banti hai. These are preferred ingredients to prepare fasting dishes in North India, as they are nutritious as well as filling in the absence of grains like wheat. Jab aap wo wheat nahi khate. Buckwheat is made into rotis, puris, pakoras and eaten during these fasts. Jin fast ke baare mein bata raha hu, उनको typically फलाहार fast कहते हैं. In fast में food can be divided into two categories. One is these foods are
harvested with the help of special equipment. These include rice, wheat, barley, lentils. और आप अन्न नहीं खाते in fast में. दूसरा होता है फल. Now, फल are harvested without the help of any special equipment. They traditionally grow without special cultivation. These include wild grains, vegetables, fruits, certain roots and tubers, and flowers. Only fal are permitted in a falahar meal. This division can be traced back to aesthetics. जो लोग ज़्यादा ध्यान या पूजा करते थे, they did not want to eat vegetables which were actually cultivated through machinery. They just wanted to eat natural, जो naturally grow होता था, वो चीजें वो खाना चाहते थे. तो उनकी philosophy follow करने के लिए ये fast रखा जाता है. Now, let's talk about buckwheat a bit. Buckwheat is not related to wheat and it is naturally gluten-free. ऐसे कैसे? Wheat के नाम रखा है? Buckwheat. It is common in China and Tibet, especially in mountainous areas where wheat does not grow. आपने अगर आप जापानीज खाने के एंथुसियास्ट हैं, आपने सोबा नूडल्स के बारे में सुना होगा. वो भी बकव्हीट से बनते हैं. अभी सोबा ही सुना है. तो ये बकव्हीट को सोक कर सकते हो, स्प्राउट कर सकते हो, फर्मेंट कर सकते हो. उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाना मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी में. It is rich in minerals like iron, zinc, and it has antioxidants, flavonoids. It is low to medium on the GI scale, meaning it is good for diabetics, as it causes a gradual increase in blood sugar levels after a meal. अगर आप जैसे मैदा खाओगे, आपकी blood sugar levels बिल्कुल ऐसे stonks बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे जल्दी से. इसमें धीरे-धीरे ऊपर जाते हैं. लेकिन जाते हैं. हाँ, लेकिन जाते हैं. Buckwheat also contains anti-inflammatory compound which fights allergic conditions. Or you should actually eat it on other days as well, not just fast में तो लोग खाते ही हैं, but आप पूरे साल खाओ. It is a much healthy option to मैदा. तो ये हो गया buckwheat के बारे में. But let's go back briefly to पूड़ी आलू as breakfast. ये is it a Delhi or UP only phenomena Sadaf, और ये सब जगह होता है? तो जैसा already I mentioned a little bit above that ज़बान और food they keep on changing. ना interesting चीजें जो है नाश्ते को लेकर, आजकल के नाश्ते, हिंदुस्तानी नाश्ते की बात करें तो जो उसमें आता है वो है कि किस तरीके से उसका evolution हुआ है. तो can we call it like a Hindustani cuisine, Hindustani food or not? And then we'll come to a conclusion as well that maybe we can, maybe we cannot. Is that एक अभी मैंने बताया, नगोरी बता दिया, पुरानी दिल्ली में एक और है शाम स्वीट्स बोल के, उनका बेड में पूड़ी भी ट्राई करें आप. वी हैव मेंशन बेड में पूड़ी भी, तो यू कैन आल्सो ट्राई दैट. अब इन चीज़ों में बेड में पूड़ी स्पेशली, इसके अंदर धनिया जाता है, क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स और लाल मिर्च पाउडर. और अगर स्टफिंग आपको करनी है किसी ऐसी चीज़ के अंदर तो उसके अंदर आप लेंटिल का मिक्स वगैरह डालते हैं. डीप फ्राई किया और आलू के करी के साथ या फिर सूखी सब्जी के साथ में सर्व कर दिया. अचार जो मैंने बिग 4 पहले ही बोल दिया, तो उसके साथ हमें सर्व कर दिया है. अब आती है बात कि कैन वी से दिस इज अ हिंदुस्तानी क्यूजीन. नाउ इंटरेस्टिंगली आलू पे हमने एपिसोड किया है, तो यू ऑलरेडी नो कि आलू तो हमारा नहीं है. आलू तो आया परदेश से, तुम तो ठहरे परदेसी. और नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ एनी रस वाली आलू की सब्जी इज मिर्ची. और आपने हमारे मिर्ची का भी एपिसोड सुना होगा, तो आपको पता है कि मिर्ची भी है परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी. एंड रस डालने के लिए, रस मतलब ग्रेवी वाले के लिए, जो आलू की सब्जियां होती हैं यूपी वाली और दिल्ली वाली, उसमें जाते हैं टमाटर. और टमाटर भी जो है विदेशी है. टमाटर पे हमने अभी एपिसोड नहीं किया है, लेकिन टमाटर भी तुम तो ठहरे परदेसी ये है. तो what I'm trying to say with all these songs very subtle is that all these things are not Hindustani, right? लेकिन preparation Hindustani है. तो इस चीज पे लड़ना झगड़ना, आजकल काफी लड़ाई झगड़े चल रही है खाने के ऊपर, चीजों को लेके. इस चीज पे लड़ना, ये हमारा नहीं है कि हमारा है, ये हमारा है ना. आया भले ही विदेश से, लेकिन फिर हमने हमारा अपना लिया. इट्स लाइक पेट्रोल.
पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोलियम जेली एक्सपोर्ट कर देते हैं, निकलता तो पेट्रोल से ही है वो, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस आई थिंक. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि वेदर पूरी आलू हिंदुस्तानी है कि नहीं है और ये ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, आई थिंक पीपल शुड बी ओपन फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड दे शुड से कि नहीं यार ये जो है बड़ा लजीज है, इसको चुप करके खा जाओ, मजे लो इसके पूरी आलू के विद जलेबी एंड अचार. So, it's a very interesting point you made. Any food is made of ingredients, say ingredients A plus B plus C, 3 ingredients हो गए, plus D. D is the art that goes into combining these ingredients in a specific ratio for them to taste good. तो चाहे A, B, C बाहर से हैं, D तो इंडिया से ही है, हमारे देश में ही ये सब चीजें हमने आलू टमाटर मसाले कंबाइन करके ये एक आलू की सब्जी बनाई है विद पूरी. तो that is what makes it Hindustani. That combination to note how to combine them in the right manner for it to taste good. Correct. And I think that's what people should be open for it and not say ये बाहरी है या फिर ये किसी और प्रदेश का है. खैर तो ये अच्छा, अब आती है बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमेशा हम बात करते हैं, और वो है क्या पूरी हेल्दी है, क्या पूरी डाइट कॉन्शियस लोगों को खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए. Actually, not even diet conscious. I would just say, can puri fit in your healthy lifestyle? I think both of us, when we talk about health food, we're not talking about people to become like gym rats. We want people to be really a healthy thing. So, your physical appearance doesn't matter as much as long as you are really eating mindfully or healthy. Correct, Archit? Correct. हाँ, तो ये हमारा भाई देखो मोटो रहा है from day one. Now, इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था काफी दिनों पहले और वो मैंने शो नोट में डाल दिया है, विच वॉज बाय वी सांघवी ऑन रूड फूड. नाउ वी सांघवी इज टॉकिंग अबाउट द फियर ऑफ फ्राइंग फूड और ये कितना हद तक जायज है लोगों को डरना फ्राइड फूड से, स्पेशली हिंदुस्तानी फ्राइड फूड से. तो ही टॉक्स टू मंजीत गिल, शेफ मंजीत गिल, अनदर बाप ऑफ फूड स्पेस. तो हम सबके गुरु है वो मंजीत गिल. तो मंजीत गिल सेज कि ये एक ऑर्थोडॉक्सी है सोचना कि पूरी जो है कंप्लीटली बुरा है या कंप्लीटली अच्छा है, या फिर इसमें काफ़ी हिपोक्रेसी भी आ सकती आती है कि आप एक साइड से बोलते हो नो पूरी इज़ नॉट गुड, बट दूसरी साइड से आप बोलते हो पूरी तो अमेजिंग है. मतलब पूरी अवॉइड कर रहे हो लेकिन दूसरी साइड से दबा के मतलब बाकी सामान पे ले जा रहे हो. तो दैट्स व्हाट ही आल्सो टॉक्स अबाउट. Now, one thing this article points out, and Chef Manjeet also talks about, that why do you think Hindustani food does not have this equipment which is called the deep fryer, जिसमें फ्रेंच फ्राइज जो फ्राई होती हैं यूजुअली कढ़ाइयों में नहीं होती हैं वो. इट्स अ डीप फ्रायर जो डीप जाता है, उसका एक बास्केट होता है, यू थ्रो ऑल दीज थिंग्स एंड यू बेसिकली लोअर इट डाउन इन द ऑयल. Okay, yeah. Simple as that. अगर आप McDonald's जाएंगे कभी तो just take a peep inside the kitchen. That's how they do the fries. Correct. So that is a deep fryer, and that's a very common thing in any Western food. हिंदुस्तान में वो नहीं है. Okay, हिंदुस्तान में क्या है, जिस तरीके से यूजुअली चीजें तली जाती हैं वो सरफेस लेवल पे होता है. मतलब पूरियां, if have you ever seen पूरी को लोअर करते हैं तेल के अंदर? कभी नहीं. Okay. And that's what Sanghvi as well as Chef Manjeet discusses, that Indian cuisine जो है या फिर पूरी जो हो गई या फिर पूरी का डिस्टेंट कजन भटूरे. भटूरे आया था पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में आ गया, ठीक है. बट आई एम नॉट श्योर, अगर पीपल इन पाकिस्तान लिसनिंग, आई थिंक आई एम टोल्ड दैट कि भटूरे जो इतने पॉपुलर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ओके दे मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट. तो हिंदुस्तान में तो भरे पड़े हैं, दिल्ली में आओ फिर तो भटूरे छोले हर दिन, वो भी वीकेंड्स का रिचुअल है काफी घरों पर. तो इवन भटूरे भी जब तला रहे हैं तो ये दोनों चीजें जो है ऑयल सरफेस पे तैरते हैं, दे आर नॉट डीप इंसर्टेड इन दी ऑयल. क्यों? साइंस है. हमने साइंस काफी बार बुलाया है, कृषि अशोक को बुला रखा है. आज हम अपना ही एपिसोड प्लग करते रहते हैं, क्या बोलते हो अच्छा? बिल्कुल. तो साइंस इज कि आपने एक बार इवेपोरेट कर दिया उसका वो मॉइस्चर, तो फ्लफ हो गया. पूरी के साथ भी यही होता है कि मॉइस्चर इवेपोरेट हो गया तो फ्लफ हो गया. सिंपल. एंड दैट्स व्हाई पूरी इज not unhealthy as compared to the other deep fried things like anything else that you can think of, fries या फिर कुछ भी हो गया. तो surface level is perfectly fine. Deep fry, Manjeet Gill in fact he also talks about the same thing in his article as well. In this particular article says कि हिंदुस्तानी खाना को अगर हम डीप फ्राई करने लगे ना तो उसका वो जो इसेंस है
वही खत्म हो जाएगा। जो मेन जो मजा है वो हिंदुस्तानी खाने में डीप फ्राइंग बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट्स व्हाट ही टॉक्स अबाउट, एंड की आर्टिकल जो है शो नोट्स में है, तो आप जाके क्लिक करें और पढ़ के आए। Correct. And there are two other nuances to this debate of puri or even Indian fried food being healthy or unhealthy. And that is the kind of oil used to fry it, and if it is the same oil used to again refry multiple times, that completely destroys the oil and will destroy your health eventually. And don't get me wrong, I love fats. In fact, fats were demeaned for a long time because of certain research done by Western nutritionists, and that was debunked because fats are necessary to feel full. अगर आपको खाना खा के तो वो फुल वाली फीलिंग चाहिए तो आपको यू नीड हेल्दी फैट्स, अदरवाइज आपको पूरा दिन भूख लगती रहेगी. द प्रॉब्लम इज यूजिंग पुअर काइंड्स ऑफ ऑयल्स. दीज इंक्लूड हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स व्हिच आर टिपिकली जो नॉर्मल ऑयल्स आप फूड कंपनीज एडवर्टाइज करती हैं वो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं. Actually, the only oil required for or the only oil permitted or ideal for refrying multiple times is ghee. I understand ghee is very expensive for most of us, but आप एक और अल्टरनेटिव है, आप यूज करें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स. नाउ कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस्ड एक तरीका होता है ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने का फ्रॉम द सीड्स. पूड़ीज को अगर आपको फ्राई करना है तो आप कच्ची घानी मस्टर्ड या सरसों के ऑयल में फ्राई कर सकते हैं. I'm going to tell you the difference between regular oils and cold pressed oils based on the nutritional value, shelf life, and cooking method, and the manufacturing process. So let's first talk about the manufacturing process. Method of extracting oil makes all the difference to its quality and flavor. Cold pressed oil जो है उसमें crushing oil bearing nuts और seeds को low heating method से pressure में crush किया जाता है, एंड सीड्स को जो बड़े सिलेंडर में डाला जाता है एंड कंटिन्यूसली रोटेट और क्रश किया जाता है टिल द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स. द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट और केमिकल सॉल्वेंट्स. तो जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स होते हैं वो अपना ओरिजिनल फ्लेवर, टेस्ट, अरोमा और न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेन करते हैं. Not only are they highly beneficial for your cardiovascular health, but also your skin अगर आप उस पे अप्लाई करें. On the contrary, refined oils जो होते हैं they are extracted using high temperatures and treated with chemical solvents that degrade their flavor, taste, and nutritional composition. Cold press oils जो होते हैं they are rich in essential fatty acids, antioxidants, vitamin E, K, C, and other healthy fats as they preserve the potent nutrients of the ingredients जिनसे भी oil निकालते हैं. अगर आप ग्राउंडनट से ऑयल निकालते हो तो वो पीनट्स के जो हेल्दी फैट्स के न्यूट्रिशन होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं. It is safe and healthy to consume cold pressed oils. और इंडिया में डिपेंडिंग ऑन द रीजन thousands of years से हम cold pressed oils कंज्यूम करते जा रहे हैं. साउथ में कोकोनट का, नॉर्थ में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल का, गुजरात के आसपास ग्राउंडनट ऑयल. तो डिफरेंट रीजन्स हैव द डिफरेंट cold pressed oils. Refined oils actually introduce bad cholesterol to your body. They increase your blood pressure, and adding it to your diet every day can increase the risk of heart attack and stroke significantly. It is actually the worst food to consume for any heart patient or for your cardiovascular health. Even worse than refined sugar. Because you can actually, if you eat moderate amounts of sugar, you can actually burn it through exercise. But bad oils will screw you either way. चाहे आप exercise करो ना करो. Regular oils undergo the hydrogenation process and are further treated with harmful chemicals, as I said. उनकी शेल्फ लाइफ और यील्ड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब बेसिकली कम सीड्स में से ज्यादा ऑयल निकालने के लिए और ज्यादा देर तक प्रिजर्व करने के लिए. ऑन द अदर हैंड, कोल्ड प्रेस ऑयल्स आर अनफिल्टर्ड एंड मिनिमली प्रोसेस्ड. उनकी थोड़ी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है और यील्ड कम होती है. एक सेम क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट से आप कम कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल निकाल सकते हो वर्सेस रेगुलर ऑयल. इसलिए थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं ये वर्सेस रेगुलर ऑयल, बट it's important for your health. Actually, it's a basic minimum for you to shift away from these unhealthy refined oils. There is no way to salvage it through exercise or through any other ways. आपको सीधा ही आपकी body will start telling you through health complications that you're treating it wrongly through consumption of these oils. And on that note, think about it. Go order good oils on Amazon. Actually, I'll link some nice oils for you to check out. तो आप ऑर्डर कीजिए, तब तक हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं.
Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by music composer and YouTuber Yashraj Mukhate. They talk about his journey, viral music, and a whole lot more. On Advertising is Dead, Varun speaks to Ankit Vyas from Oxfam India about how the increased privatization of education over the years has led to severe inequality. On The Wire Talk, Siddharth is joined by Professor Gil Verniers. They discuss his years of research on politics in UP, especially in the run-up to the elections. On Tere Mere Raaste with Keshav, hear all about the Haveli in which great Urdu poet Ghalib lived. On the Talarate Kannada podcast, Pawan is joined by Pratilipi Kannada's Akshay Balagere to talk about how Indian language writing and reading is changing in the digital era. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. एंड वेलकम बैक. जब तक आप शो नोट्स पे हम शो क्लिक करके देख लिया होगा कि कहाँ से क्या मंगाना है. बहुत अच्छी बात है. अच्छा, ये जो एपिसोड है ना, इसका आइडिया जो है हमारे बड़े ही प्यारे अनोखे न्यारे टाइप एक लिस्टनर है, उनका नाम है शशि, हु इज वीपी मार्केटिंग लीप टू डिजिटल. ही एडवाइज्ड अस टू डू एन एपिसोड ऑन पुरी फॉर मेनी रीजंस, वन रीजन बीइंग अर्चित के नाम में पुरी है. तो हमने बोला बिल्कुल. नाउ यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अस एपिसोड्स, क्योंकि देखो हम दो लोग हैं ना, दिमाग तो कितना ही चला लेंगे. पिछले ऑलमोस्ट एक साल होने को आया है अब हमारे पॉडकास्ट को, तो थक जाता है दिमाग हमारा भी भाई. तो सजेशन दे दिया करिए. और हमें भी अच्छा लगता है कि जब लोग हमसे बातें करते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज डू इट. और सुनो लिसनर्स, दिवाली आ रही है, बाकी आप समझदार हो, समझ ही जाओगे. सोन पापड़ी नहीं भैया, सोन पापड़ी के अलावा कुछ और भेज देना. खैर, ऑन दैट सोन पापड़ी नोट, अर्चित, ये हो गया आखिरी पायदान. You know, speaking of Son Papdi, legend has it that जो 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने सोन पापड़ी गिफ्ट की थी टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अभी भी दिल्ली में सर्कुलेट हो रही है. लोग एक दूसरे को देते जा रहे हैं. The never ending cycle of Son Papdi. Nobody consumes it. सब लोग एक दूसरे को देते हैं. पढ़ाते जाते. बट इन मेरे पास आएगा तो मैं खा लूंगा, बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक सोन पापड़ी. और स्पेशली पता है कौन से, वो सिली वाली जो खराब हो जाती है ना, थोड़ा सा हवा लग जाए उसके अंदर और उसको ओहो क्या स्वाद आता है. देखो दो तीन fermented. खराब को बोलने का दूसरा तरीका ferment. बिकॉज पता है क्या, जब वो हल्की सी fermented हो जाती है ना, हल्की सी सिल जाती है, तो जब उठाओ ना तो गिरता नहीं है, सीधा मुंह में खा सकते हो, सीधा हाथ में आएगा, सीधा यू कैन बाइट. आई एक्चुअली लाइक दैट बेटर देन. सॉरी यार, हमारे सस्ते शौक हैं. अच्छा, अब देवी और सज्जनों, हम आ चुके हैं अपने आखिरी पायदान पर. ये सवाल जवाब करने के बाद आपको मिलेंगे सीधे 15 करोड़ के पॉइंट्स, जिसको आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बिटकॉइन में है और बिटकॉइन इलीगल है. तो पुरी साहब, फेवरेट या फिर यूनिक कॉम्बिनेशन पूरी के साथ में? मतलब यूनिक तो कुछ है नहीं ज्यादा, बट कुट्टू की पूरी, as I already mentioned, buckwheat puri, that is something I would like to eat over other kinds of puris. Oh, nice. आप बताइए. Mine is, मतलब of course यूजुअल चीजें हैं जो हमने बात कर ली है, लेकिन मुझे ना पूरी के साथ में वो जो कबाब या फिर करीज आती हैं, गोश्त की कोई भी सालन ले लो, वो काफी सही लगता है. और ये एक आई मीन इन जनरल ये जो है कायस्थ कम्युनिटी में एक डेलिकेसी भी है. आई लाइक दैट. बंगाल में आई थिंक, और इवन बिहार में मटन के साथ सर्व होती है ना पूरी. बिल्कुल मटन के साथ पूरी, या फिर मटन के साथ वो भी लिट्टी भी सर्व होता है. लिट्टी मटन इज अ वेरी पॉपुलर डिश. काफी मजे आते हैं. खैर, तो ये हो गए यूनिक कॉम्बिनेशंस. व्हाट अबाउट योर अंडररेटेड? I mean, कभी when we're talking about a fried food, there are hardly any underrated foods. Typically fried food overrated ही होते हैं. Underrated तो कभी होते ही नहीं. Deep fried foods कभी आपने सुना है underrated पकौड़ा कोई? नहीं. मैगी नहीं, वो overrated होता है. But हाँ, I get the sentiment. Yeah. But एक भी नहीं है, कोई भी नहीं. Underrated तो पूरी से related कुछ
कुछ नहीं है actually. Oh. I mean, कुट्टू की पूड़ी you could say is underrated because वो सिर्फ fast में खाई जाती है. You should eat it all year long. Even millet से बनी हुई पूड़ी is something that is underrated compared to आटे से बनी हुई पूड़ी. So let's take that. हाँ. I will take nagodi. Nagodi. ये जो interesting combination है ना, people should try it. So yeah, nagodi पूड़ी. और आखिरी controversial overrated. अक्सर हम इस पे अलग अलग होते हैं. तो देखा जाए इस बारी का क्या सीन है. Overrated क्या है? I think bhatura is definitely overrated. It is a fermented puri made with maida or refined flour. Now, maida, as I mentioned multiple times on this podcast, it basically removes all the nutrition from wheat, and it is to make it white. It is bleached, so it has zero nutrition. और उसमें वो chemicals add होते हैं उसे bleach करने के लिए. तो कभी आपको किसी ने पूड़ी की जगह आपको भटूरा सर्व कर दिया तो आप उनको बोल सकते हैं ओए चूना लगा दिया because it's literally चूना. I will not before you. Okay, what is yours? This is one of those times when I completely agree with you. I am not a fan of bhatura. I am not. In fact, a friend of mine, he tells me he's a big fan of bhatura and chola. I am like, तो वो हर दिन every week he tries to convert me कि अरे कैसे नहीं खा सकते, but I just don't like it. Yeah. I have nothing against chana bhatura, chola bhatura, but उसमें जो hero है वो चने और छोले होते हैं, not the bhatura. You can actually have it with puri, or you can have it with bread, parantha, anything that you like. असली तो flavor जो होता है वो उसका होता है छोले का. Correct. I mean, many might not agree with you, but yeah, I many might not completely understand because खाने के बारे में जब बात होती है और ये हम हर बार बोलते हैं मैटर ऑफ परसेप्शन, सबके अलग अलग नजरिए हैं, ये हमारा नजरिया बस. भाई तो हम ही लड़ते रहते हैं, कभी अक्सर हमारा मेल जाता है, यहाँ पे हो गया. आज का बड़े दिनों बाद टिप देते हैं, टिप पर सा पानी करते हैं. दीजिए. पहला तो कि you mentioned about deep frying oil में. Now what you could do, मतलब मेरे घर का practice ही है, so general practice, I think it's great. Instead of deep frying the same oil over and over again, take a small कढ़ाई. You don't have to take a gigantic कढ़ाई. Small कढ़ाई, थोड़ा सा oil डालो, उसमें fry हो जाएगा. Whatever the oil is left, right? You're not deep frying it, but you can cook that. Cook मतलब उसको लेके कुछ और सब्जी बना लो आप. Okay? That's what usually I do. तो मेरा जो oil dispenser है, उससे जो भी तेल निकला, अगर वो deep fry हो गया है, उससे एक बारी, usually घरों पे तो एक बारी deep fry होता है ना, then you can use it otherwise to cook सब्जी या फिर कुछ भी, not to लगाओ तड़का. Refined oil से तो बहुत कम ही लोग तड़का लगाता है. But so that's one thing you could do. Second, to make a really nice crispy करारी पूरियां, दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी लोग करते भी हैं. पहला, सूजी. So if you add suji in your maida या फिर आटा या फिर कुट्टू का आटा, कुछ में भी, it will give really nice दानेदार texture to your पूरियां, which also will help to make it fluffy. And second, restaurants में इस्तेमाल होता है इसका, हर जगह नहीं होता है, which is baking powder. बेकिंग पाउडर यू ऑलरेडी नो कि केक वेक में डालते हैं ताकि वो फ्लफ करे, तो पूरी में भी हल्का सा डाल सकते हैं बेकिंग पाउडर, उससे जो है बहुत सही फ्लफ करता है. सो या, एंड आई थिंक थर्ड वेरी बेसिक वन, दैट व्हेन यू मेक पूरी, मेक श्योर व्हाटएवर काइंड ऑफ आटा यूजिंग, लेट इट सिट फॉर द बिट. ऐसा कुछ लगेगा उन्होंने गूंदा आटा गड़गड़ किया और चालू कर दिया, नहीं, लेट इट सिट फॉर द बिट एंड देन उससे फर्मेंट भी हो जाता है थोड़ा सा, और उससे खस्तानेस आती है, उसको फर्मेंट होता है, और उसको बिकॉज में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है. दैट्स व्हाई अक्सर जब ब्रेड बनता है उसको मतलब, एंड आल्सो पूरी इज अनलेवेंड, मतलब खमीरी नहीं है इसके अंदर होती है, तो वो थोड़ा सा बैठा, लेट इट सेट, वो अपने आप इलास्टिक हो जाएगी. एंड सॉरी, वन मोर, आज तो बम्पर, आज दिवाली धमाका. वन मोर, नेवर फ्राई योर पूरियां इन ठंडी तेल, बिकॉज अगर ठंडा तेल होगा, ऑयल जो है सीप इन कर जाएगा इन योर पूरी, एंड देन यू विल से बहुत ही बकवास बना है. तो थोड़ा तेल गर्म होना चाहिए. हाथ डाल के मत देख लेना कि गर्म है कि ठंडा है, उसके बाकी मैकेनिज्म भी होते हैं. हाँ, पैर डाल लेना. हाँ, पैर डाल देना. तब तक आप पैर डालो, हम करते हैं दुकान बंद. If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcast on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit on Twitter @BandTofu
and on Instagram @thehustling-glutton. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid. Given the unprecedented times our nation is going through, where positive is now a dreaded word, Smile India gets you delightful news from across the country about people and places that continue to spread the much-needed hope and positive vibes. I am Shifa Maitra, and you can hear Smile India with me every Thursday on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts from. Oh, and did I tell you Smile India is available in both English and Hindi.